Hello everyone. So in this part of the video, we'll be going to discuss further questions. As you all know, in set 1, I have discussed first 10 questions. In this set, we'll be discussing further questions of All India Sainik School Entrance Exam, paper 2021. This will be your part 2. These are the instructions. Read them very carefully before attempting the questions. So this will be your question number 1. If 10 men can do a piece of work in 14 days, what is given to you? 10 men took 4 days to complete the work, right? How many men will be required to get the same work done in 5 days? Number of men required be X. Take it as X. Whatever they are asking, just take it as X. They take 5 days to complete the work, right? And both of them did the same unit of work, यानी कि work 1 is equals to work 2, right? So जब भी आपको work निकालना होता है कि कितना कम हो गया, work done आपका होता है men into number of days taken, ठीक है? So यहाँ पे work 1 कितना हुआ है हमारा? Number of men 40 days for number of men is 10. So 40 units of work has been completed, right? और वर्क 2 क्या हुआ है आपका? वर्क 2 is x men 5 days, तो 5x units. As it has been given that work 1 is equals to work 2, यहाँ पे बोला है ना, both of them did same unit of work, ये रहा same work done in 5 days, right? So इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, W1 is equals to W1. W1 is 40, W2 is 5x. X comes out to be 40 upon 5, that is 8. That means x हमने क्या लेट किया था, number of men required to complete the work in 5 days is x. So 8 will be your answer. Moving on to next question, we have 21 goats eat as much as 15 cows. 21 goats जो हैं आपकी किसके बराबर हैं? 15 cows के बराबर हैं. 21 goats equals to 15 cows, right? Next, so you can say that goats upon cows is equals to 15 upon 21, that is this, ठीक है? They are asking how many goats eat as much as 35 cows, मतलब कितनी goats 35 cows के बराबर हैं, ठीक है? How many goats are equals to 35 cows, ठीक? So हमें cows के लिए निकालना है. So one goat, here we can say that one cow is इस रेशियो से हम क्या निकाल सकते हैं? One cow is equals to 7 upon 5 goats, right? So if one cow is equals to 7 upon 5 goats, तो 35 cows कितने के बराबर होंगी? 7 upon 5 into 35, 5 ones 5 sevens 49 goats के बराबर. Is that okay? So 49 will be your answer. Am I right? If you have any doubt, kindly leave the comment below so that I'm able to know where you people are having doubts. Moving on to next question. A mechanic earns rupees 36,000 on 9 cars. That means अगर वो 9 cars पे काम करता है तो उसकी कितने रुपीस मिलते हैं? 36,000, right? How much will he earn in one day if in a day he receives 27 cars, ठीक है? So आपको 9 cars का पता है, 36,000 अर्न कर रहा है, तो वो 1 कार पे कितना अर्न करेगा? 36,000 upon 9, that means rupees 4,000 1 कार पे अर्न करेगा, right? How much will he earn in one day? That means वो एक दिन में कितना कमाएगा if in a day he receives 27 cars. अगर वो 27 cars रिसीव करता है तो. So as we know कि 1 कार जब वो
काम करेगा 1 कार पर तो ही इज अर्निंग 4000। तो जब वो 27 कार्स पर काम करेगा तो हाउ मच विल ही अर्न? एक कार पे 4000 था तो 27 पे कितना होगा? यू कैन गेट इट, 4 7s are 28, 4 2s are 8, 9 10, your 3 zeros. So he will be earning rupees 108000. This will be your answer. This will be your answer. Is that okay? Moving on to question number 14. If you have not seen the video of set 1, kindly watch that video so that you can have an idea of the question paper, that what kind of questions you will be getting in your exam. Moving on to question number 14. If x is to y is 3 is to 4, find the ratio this. So x upon y is given to you as 3 upon 5. जब हमें ये दिया हुआ है तो हमें that means directly ratios की property होती है, ये direct x और y की value given है. So simply put the values of x and y in the equation given to you, that is 3x plus 4y upon 8x plus 5y. Okay, what is 3x? X is given to you as 3. What is 4y is given to you as 5. Again 8 into 3 plus 5 into 5. This is 3 3s are 9, 5 4s are 20, 8 3s are 24, 5 5s are 25. You will be getting 29 upon 49. This will be your answer. Cancel out हो रहा है तो cancel out कर देंगे. So 29 upon 49 will be your answer. Okay. Next question. Find the value of m if 3, 18m and 42 are in proportion. So this is the ratio and proportion part. So if something is given to you as in proportion, how you write it? It's written as 3 is to 18 is to m is to 14. This is how you write. ठीक है. So फिर क्या करते हैं आपको पता है ये प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, राइट. रेशियो प्रपोर्शन में क्या होता है? दीज टू टर्म्स आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम्स, क्योंकि ये एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स पे होती हैं. तो जस्ट रिमेंबर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स पर हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम्स. एंड 18 एंड m, these are called as means, right? So we have product of means is equals to product of extremes. Means कौन कौन से हमारे? 18 and m. Extremes हैं 3 and 42. You need to calculate the value of m. 3 into 42 upon 18. That means 3 ones are 3 6 are 18, 6 ones are 6 7s are. The value of m will be 7. This will be your answer. Okay. Moving on to next question. Question number 16. Just give me a minute. Here is your question number 16. So read the question, everyone. In an NCC camp, 1200 trainees are participating, out of which 900 are selected for Republic Day camp. That means total participants given to you as total number of participants given to you as 1200, right? Write it here. Total participants कितने थे कैंप में? 1200 थे, right? Out of which 900 are selected. सिलेक्शन कितनों का हुआ है? 900 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया, राइट. सो अब रिमेनिंग जो कैंडिडेट्स बचते हैं वो कौन से होते हैं? रिमेनिंग मतलब ऑब्वियस है नॉन सिलेक्टेड वंस होंगे ये वाले. इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है जो आपके रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं. हाउ मच?
1200 minus 900, that is 300, right? What is the ratio between the number of selected and non-selected cadets? Therefore, ratio हमसे क्या बोला है? Selected and non-selected. Selected are 900, non-selected 300. Your answer will be 3:1. This will be your answer. Okay, 3:1 will be your answer, right? Moving on to next question number 17. If a boy sells a book for rupees 450, question is saying sells a book for rupees 450, that means SP of a book is given to you as rupees 450. He makes a loss of 10%. लॉस होता है उसको 10% का, राइट? टू गेन 10% व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस? क्या सेलिंग प्राइस होना चाहिए? अच्छा, आपको एसपी पता है, आपको लॉस परसेंट पता है. कैन यू कैलकुलेट सीपी? यस ऑफ कोर्स. सीपी क्या होगा आपका? योर सीपी विल बी एसपी प्लस लॉस, क्योंकि हमारा लॉस क्या होता है? लॉस होता है आपका सीपी माइनस एसपी, राइट? तो लॉस अगर सीपी माइनस एसपी होता है तो सीपी क्या होगा? एसपी प्लस लॉस. टेक एसपी एज एक्स, लेट सीपी बी एक्स. ठीक है, तो सीपी एक्स हो गया, एसपी 450 गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है, कितना है? 10/100 इंटू एक्स. यही तो करते हैं लॉस परसेंट ऑफ सीपी. एक्स की टर्म्स को एक साथ कीजिए, एक्स माइनस, इससे आप कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा? x/10 इज इक्वल्स टू 450. दिस इज 10x माइनस x/10 इज इक्वल्स टू 450. x comes out to be 450 into 10/9. 500 will be your CP. अब आपके पास x which is equals to CP is equals to rupees 500. ठीक है, उसने क्या बोला है? टू गेन 10% what should be the selling price. अब हमें 10% का प्रॉफिट, अब आपके पास CP आ गया, आपको प्रॉफिट दे रखा है 10% का, राइट? आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका? CP प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP. यही तो होता है फॉर्मूला. CP is 500, profit percent is 10, of CP is 500. You cancel out it. 500 plus 50. Your CP will be rupees 550. This will be your answer. Be very careful while solving. अगर एक भी स्टेप गड़बड़ हुआ तो पूरा सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा. That's why I'm saying be very careful while you attempt maths questions. Moving on to next question. A man sells one speaker for rupees 7500. So क्या given है क्वेश्चन में? सबसे पहले देखो, SP of a speaker. SP of a speaker is given to you as rupees 7500 at a profit of 20%. जब इसने ये किया तो इसने 20% का क्या किया? प्रॉफिट अर्न किया. And another speaker for rupees 8100. SP of another speaker rupees 8100 एंड लॉस कितने का हुआ इसको? इस पे 10% का लॉस हुआ. ठीक है, फाइंड इज टोटल लॉस और प्रॉफिट. हमें टोटल निकालना है. सबसे पहला केस 1 क्या होगा? फर्स्ट में क्या होगा कि पहले तो ये वाला जो SP गिवन है आपको 7500 और जिस पे प्रॉफिट हो रहा है 20% के लिए, उसके लिए आपको CP निकालना पड़ेगा. तो इस वाले CP को हम X लेट कर लेते हैं. CP ऑफ फर्स्ट स्पीकर बी X. ठीक है, सो CP विल बी SP माइनस प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP, है ना? X, SP कितना है? 7500, प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20/100 इंटू X. X प्लस
20 upon 100x is 7500. So this will be 120 upon 100x is 7500, implies x is equals to 7500 into 100 upon 120. Cancel it out. 15 8s are 120, 15 5s are 75, 4 2s are 8, 4 25s are 2 1s are 2, 25s are 50, 6250. ये आपका एक सीपी आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे सीपी ऑफ अदर स्पीकर। सीपी ऑफ अदर स्पीकर को हम लेट करते हैं सीपी ऑफ अदर स्पीकर, हमने लेट किया y, ठीक है। तो सीपी, अब इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सीपी इज इक्वल्स टू एसपी प्लस लॉस परसेंट ऑफ सीपी, राइट। ये था हमारा y, एसपी था 8100, लॉस परसेंट 10 अपॉन 100 इंटू y। So this will be y minus 10 upon 100 y is equals to 8100, ठीक है। This will be 90 upon 100 y is equals to 8100. Your y comes out to be as 8100 into 100 upon 90. नौ हजार आएगी आपकी y की वैल्यू। y comes out to be 9000, राइट। कितना आया भाई, 9000, ठीक है। तो अब आपके पास, नाउ लुक हियर, टोटल एसपी कितना है आपके पास। टोटल हमें क्या निकालना है, फाइंड इज टोटल प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। टोटल एसपी कितना है, 7500 प्लस 8100, ये तो गिवन था, 8 and 7 15, ठीक है। टोटल सीपी हमने निकाला, एक हमारा आया 6250 और एक आया हमारा 9000, 0 5 2 15 250. So when SP is greater than CP, because SP is greater than CP implies आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP minus CP. What is SP? 15600 and CP is 1550. What you are getting is 350 rupees का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट, विच इज योर आंसर। ये रहा प्रॉफिट ऑफ रुपीज 350, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ, 350 का। इफ यू हैव एनी डाउट आई एम अगेन टेलिंग यू, काइंडली लीव द कमेंट, योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड। Question number 19. Simplify 841. This is the statement given to you and you have to simplify it. Here you will apply BODMAS. BODMAS पता है ना क्या होता है? This is bracket of division, multiplication, addition and subtraction. ये आपको sequence में apply करना होता है whenever you are going for simplification. ठीक है? There is something wrong in the question. You have to simplify this, okay? जब you can see that here nothing, just these are getting multiplied, this is also getting multiplied, ठीक है। ये क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, दिस इज द फुल क्वेश्चन, ठीक है। सो सबसे पहले ब्रैकेट्स हम सॉल्व करेंगे, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, तो विल बी सॉल्विंग द ब्रैकेट्स फर्स्ट। आई एम राइटिंग इट हियर स्टेप वाइज, ठीक है। 8 + 4 - 2, क्योंकि ये ब्रैकेट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या आ रहा है, एडिशन आ रहा है, तो 8 + 4 12 - 2 10, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट ब्रैकेट इज 17 माइनस 12 कमिंग आउट टू बी 5. ब्रैकेट सॉल्व हो गया. ब्रैकेट सॉल्व हो गया हमारा क्या आया 10 इंटू 5 इंटू 10 माइनस 89. अब देखिए मल्टीप्लीकेशन पहले आता है कि सब्ट्रैक्शन. अकॉर्डिंग टू बॉड मास मल्टीप्लीकेशन आता है तो विल बी सॉल्विंग इट. दिस इज 500 माइनस 89. व्हाट विल बी द आंसर? योर आंसर विल बी 411. ठीक है. आई जस्ट वॉन्ट टू से कि यू हैव टू गो इट in order. Like first of all, if there is bracket, you have to solve it first, then off, then division, multiplication, addition and subtraction. ये नहीं है कि आप पहले 10 माइनस 89 कर रहे हैं क्योंकि वो आपको easy पड़ जाएगा. No. अगर ऐसे करेंगे then you will not be getting the right answer. So go in a proper sequence of BOD mass. So your answer will be 411. Okay. Moving on to next. Here also will be going to apply BOD mass. ठीक है. Just correct the question here. This is 0 plus 1.5 into 5. This is into 5 divided by 10. This is 5 divided by 10. Then multiply 0.5. So I am writing the question here. 0.05 plus 1.5 multiply by 5 divided by 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5. ठीक है. अप्लाई द रूल ऑफ बॉड मास. अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स नहीं गिवन है, ब्रैकेट्स के बाद ऑफ भी नहीं गिवन है. व्हाट इज गिवन टू यू? डिवीजन. तो पहले डिवीजन सॉल्व करते हैं. 0.05 प्लस 1.5 एज इट इज रहेगा इनटू डिवीजन किसके बीच में है? 5 एंड 10 के बीच में. दिस कम्स आउट टू बी 0.2. सॉरी 0.5. 5 डिवाइडेड बाय 10 इज 0.5 इंटू 0.5. ठीक है. अब क्या है? डिवीजन एडिशन है कि मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लीकेशन है. 0.05 प्लस सबको मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज 1.5. 5 5 are 25. 25. How many points are there? 1 2 3. 0.375. अब क्या बचता है? खाली आपका बचता है एडिशन. 12. 0.425 will be your answer. 0.425 will be your answer. Okay. So बॉड मास के अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करोगे तो you will be getting right answer. बट अगर रूल के अगेंस्ट जाओगे तो you will not be getting the right answer. ठीक है. Moving on to next question. Simplify 7 plus 5 minus 2. Here it is multiplication sign. Multiply 7 plus 89 minus 94. Here it is division divided by 2 plus 33 divided by 3 plus 9 multiply by 2 minus 7 then bracket close divided by 11. I am writing the question here. 7 plus 5 minus 2 multiply, then we have bracket 7 plus 89, right, minus 94 divided by 2 plus 33 divided by 3 plus 9 multiply by 2 minus 7 divided by 11. ठीक है. अप्लाई द रूल ऑफ बॉड मास. बॉड मास में क्या है? सबसे पहले ब्रैकेट्स. ठीक है. तो 7 प्लस 5 माइनस 2 इंटू क्या आएगा इसका एडिशन? 9 प्लस 7 इज 16. दैट मीन्स 96. 94 डिवाइडेड बाई 2. पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने हैं. प्लस अब ब्रैकेट को अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 33 डिवाइडेड बाई 3 11. डिवीजन पहले, मल्टीप्लीकेशन आएगा 9 2 18 माइनस 7 11, राइट. So this will be 7 plus 5 minus 2 into 96 minus 94 divided by 2. ये कितना आएगा? 22 divided by 11. अब हम क्या सॉल्व कर सकते हैं? डिविजन. 7 plus 5 minus 2 into 96, right. 2 4s are 8, 2 7s are 14, 47 plus 22 divided by 11 is 2, right.
अब आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 7 + 5, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 19 minus 47 + 2. नाउ व्हाट यू विल डू, जितने भी एडिशन वाली टर्म्स हैं, प्लस वाली टर्म्स को एक साथ लिख लो, 7 + 5 + 2, 12, 13, 14 आया, और नेगेटिव टर्म्स को एक साथ लिख लो, 192 - 47, 239 + 14 - 239 कितना आएगा, 239 में से 14 सब्ट्रैक्ट करो, 225 का माइनस, क्योंकि आपकी नेगेटिव टर्म बड़ी है, -225 विल बी योर आंसर, ये रहा, -225 विल बी योर आंसर, क्योंकि नेगेटिव टर्म बड़ी है ना, इसीलिए नेगेटिव। नेक्स्ट इज द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज इन अ क्लास इज 160 kg। 20 बॉयज का एवरेज वेट दे रखा है, तो टोटल वेट of 20 boys is equals to 160 and that of the remaining 5 boys is 50 kg. The average weight of 20 boys in a class is 160 and that of the remaining 5 boys is 50. तो remaining 5 का total weight कितना होगा, remaining 5 का total weight is equals to 15 × 5, that is इसका तो हो जाएगा 160 × 20 और इसका हो जाएगा 50 × 5, 16 × 2 = 32, राइट, और दिस इज 250। तो कितने बच्चे हो गए, 16 + 5 21 स्टूडेंट्स हो गए, राइट। नहीं, टोटल स्टूडेंट्स है 25। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। अब हमें एवरेज, तो टोटल वेट कितना हो गया, टोटल वेट आपका हो गया 3200 + 250, 250 you'll be getting 053450, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे आपके पास, 20 + 5 25 टोटल स्टूडेंट्स थे। तो एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज, एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज इज इक्वल्स टू टोटल वेट 3450 अपॉन 25। डायरेक्टली 25 से कैंसिल आउट करते हैं, 25 ones are 14 - 5 9, 25 3s are 75, 0 2 25 8s are 200. Your answer will be 138 kgs. Am I right? कहीं भी कोई भी डाउट है प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, so that I can answer your doubts. Don't keep your doubts with yourselves. Is that okay? Next, question number 23. The average marks obtained by 7 students in a group is 226. तो 7 बच्चों के 226 मार्क्स आए हैं एवरेज, ठीक है। तो टोटल मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के कितने आ गए, टोटल मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स कितने मार्क्स आए हैं इनके, 226 एवरेज था, 7 × 6 = 42, 7 × 2 = 14, 15 16 17 18, 7 × 2 = 14 15, 1582 टोटल मार्क्स थे। इफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 ऑफ देम आर गिवन, 6 के हमें दे रखे हैं, तो टोटल मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स, what you will do, you will add them up, that is 340 + 180 + 260 + 56 + 275 + 307, इनको आप ऐड करोगे तो आपके मार्क्स आएंगे 1418। एंड व्हाट इज क्वेश्चन आस्किंग, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 7 स्टूडेंट, ठीक है। 7th बच्चे के, भाई 7 पूरे 1 to 7 बच्चों के हमारे पास कितने मार्क्स थे, 1582, राइट, और 6 बच्चों के कितने थे, 1418। $164 will be your answer. I'll tell you how. आपके पास 10 टॉफीज थी, ठीक है, क्लास में
आपके पास 10 टॉफीज हैं, राइट, यू हैव 10 टॉफीज विद यू, आपने 5 टॉफीज दे दी अपनी फ्रेंड को, ठीक है, आपके पास कितनी टॉफीज बची, 5 ना। सिमिलरली टोटल जितने भी 7 बच्चे थे उन सबका वेट ये था, 6 जितने भी बच्चे थे उनका वेट ये था, जब तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7th बच्चे का वेट आएगा ना, दैट इज 164, ठीक है। Moving on to next question. A library has an average of 510 visitors on Sunday. This question is very important. It's a bit tricky one. You have to pay attention on this question, right? A library has an average of 150 visitors on Sundays. Sundays को कितने visitors आते हैं लाइब्रेरी में? On around 510, ठीक है? And 240 on other days. Monday to Saturday कितने आते हैं? Other days पे आते हैं आपके 240, ठीक है? The average number of visitors in a month of 30 days starting with Sundays. Keep in mind यहाँ पे 30 days का मंथ है, यहाँ पे मंथ चेंज भी हो सकता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे क्या है, 30 डेज का मंथ है, तो जब भी 30 डेज का मंथ, अगर 30 डेज का मंथ है और वो संडे से स्टार्ट हो रहा है तो उस मंथ में 5 संडेज होंगे, ठीक है। सो द मंथ विल बी हैविंग टोटल संडेज कितने होंगे, 5 संडेज होंगे मंथ में, 5 संडेज होंगे, ठीक है। कितने होंगे, 5 संडेज होंगे, क्योंकि द मंथ इज ऑफ 30 डेज, ठीक है, एंड वो स्टार्ट किससे हो रहा है, संडे से। सो मंथ में हाउ मेनी संडेज विल बी देयर, 5 संडेज। तो टोटल विजिटर्स ऑन संडेज कितने होंगे, टोटल विजिटर्स ऑन संडेज कितने होंगे, आपको पता है एक संडे में 510 आते हैं, तो 5 संडेज में कितने आएंगे, 2550 विजिटर्स, ठीक है। अब आपके पास रिमेनिंग डेज कितने बचे, भाई 30 डेज थे टोटल, उसमें से आपके 5 संडेज निकल गए, यू आर लेफ्ट विथ 25 डेज, राइट। तो विजिटर्स ऑन 25 दीज डेज कितने होंगे, विजिटर्स ऑन दीज डेज कितने विजिटर्स होंगे, 25 डेज थे और एक दिन में, मतलब एक ग्रुप में 240 आ रहे हैं, सो विल बी गेटिंग 25 into 240 as 6000 visitors, ठीक है। यहाँ पे आप कहेंगे 6000 visitors. What you need to calculate the average number of visitors in a month, days starting with Sundays, average number of months, पूरे मंथ में निकालना है। तो हमारे पास अब टोटल विजिटर्स कितने हो गए, टोटल विजिटर्स हो गए हमारे पास, टोटल विजिटर्स इन अ मंथ, संडे के हम ऐड करेंगे विच इज 2550 और 6000, विल बी गेटिंग 0558550 टोटल विजिटर्स हो गए। तो हमारे पास एवरेज विजिटर्स कितने हो जाएंगे, एवरेज विजिटर्स इज टोटल विजिटर्स अपॉन 30, एम आई राइट, विल बी गेटिंग 285 एज योर आंसर विल बी 285, ओके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट इट वेरी केयरफुली। Question number 25. A batsman makes a score of 85 runs in the 7th match. That means जब उसने 7th मैच खेला तो उसने 87 रन्स बनाए, ठीक है, एंड दस इंक्रीजेज एवरेज बाय 3, उसका एवरेज 3 से इंक्रीज हो गया। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर द 17th मैच, ठीक है। सो सबसे पहले हमें 1 to 16 का डेटा पता होना चाहिए। उसने बोला कि इंक्रीजेज इज एवरेज बाय 3, जो पहले एवरेज था उससे 3 ज्यादा हो गया, तो व्हाट यू विल टेक, लेट एवरेज ऑफ 16 मैचेस बी x, ठीक है। तो टोटल रन्स स्कोर्ड कितने आ जाएंगे, टोटल रन्स स्कोर्ड इन 16 मैचेस 16x, ठीक है। सो न्यू एवरेज क्या होगा उसका न्यू एवरेज होगा x + 3। उसने बोला है ना इंक्रीज इज एवरेज बाय 3, तो पहले अगर x था तो अब कितना हो जाएगा x + 3। सो व्हाट इज एवरेज आफ्टर द 17th मैच, हमें टोटल 17th मैच के एवरेजेस निकालने हैं। सो हाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज, यू नीड टोटल रन्स इन 17 मैचेस, जितना भी टोटल रन्स कितने होंगे, 16 मैचेस के रन 16x, 17th मैच में उसने 87 रन बनाए, टोटल मैचेस कितने खेले उसने 17, इज इक्वल्स टू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज एंड व्हाट इज
दिस विल बी योर न्यू एवरेज. ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन, प्लीज पे अटेंशन. 17th मैच में उसने 87 रन्स बनाए थे. उसने बोला कि द बैट्समैन इंक्रीजेस इज एवरेज बाय 3, मतलब जो पहले एवरेज था उससे 3 एवरेज उसका इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स बढ़ गया है. सो मैंने क्या किया कि लेट एवरेज ऑफ 16 मैचेस बी x. ठीक है, 16 मैचेस तक का हमारा एवरेज x था. तो टोटल रन उसने, भाई जब एवरेज 16 था तो उस 16 मैचेस खेले उसने, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे 16x. तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा x + 3, क्योंकि क्वेश्चन में दे हैव सेड कि ही हैज इंक्रीज्ड हिज एवरेज बाय 3. ठीक है, हाउ विल यू कैलकुलेट. अब आपको एवरेज मिल गया. एवरेज कैसे निकालते हैं आप, टोटल रन्स अपॉन टोटल मैचेस प्लेड. टोटल रन्स में कितना आएगा, जितने भी 16 मैचेस में रन बनाए उसने प्लस 17th मैच में जिसने रन बनाए, ये टोटल रन्स आ गए, अपॉन 17 इज इक्वल्स टू x + 3. नाउ यूल सॉल्व 16x plus 87 is equals to 17x plus 3, right? 16x plus 87 is equals to 17x plus 51. I'm solving it here. Bringing x terms together, 87 minus 51 is equals to 17x minus 16x. x, what you need to calculate, find his average after the 17th match. नहीं, this is x तो हमारा 16, this is not your answer. आपका x क्या, ये 16 मैचेस का एवरेज है, लेकिन उसने 17th मैच के बाद बोला है, therefore एवरेज आफ्टर 17 मैचेस एवरेज आफ्टर 17 मैचेस इज इक्वल्स टू x plus 3 हमारा 36 plus 3, 39 will be your answer. And I am very much sure कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे. 36 आपने यहाँ x निकाला, आप तुरंत इस 36 को मार्क कर देंगे, बट दिस विल नॉट बी योर आंसर. ये आपका 16 मैचेस का एवरेज था, उसने हमें 17th मैच का एवरेज बोला है, आफ्टर द 17th मैच का एवरेज बोला है, और 17th मैच का आपका एवरेज कैसे आएगा, ऐसे. इज दैट ओके? Moving on to next question, average of 1 3 5 7 9 11 13. So इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, क्योंकि these are how many terms are there, 1 2 3 4 5 6 7 terms. So you know average of odd terms, average of odd number of terms, odd number of terms is equals to n plus 1 by 2th term. यही होता है ना बेसिकली. सो n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 7 plus 1 by 2th term, that is 8 by 2. 4th term will be your average. 4th term कौन सी है, काउंट करो, 1 2 3 4 7 will be your answer. अगर ऐसे आपको फॉर्मूला याद रहता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रहता तो व्हाट यू विल डू, सबको सिंपली टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, जो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला है. दिस इज इन केस अगर आपको याद नहीं है, अदरवाइज जो हमारा होता है नंबर एवरेज ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, दिस इज n plus 1 by 2th term. नेक्स्ट, इफ x% of y is 100, what is given to you, write it here. x% मतलब x upon 100 of मतलब मल्टीप्लाई y is 100, that means xy की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10,000. ठीक है, फर्स्ट. एंड y% of z, that means y% of z is equals to 200, that means yz की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20,000. दिस इज 2. देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड z, x और z के. अब आपको यहाँ पे x और y पता है, यहाँ पे y और z पता है. किसी की एक, अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूं तो फिर उसको बाद में इक्वल कर सकती हूं मैं. ठीक है, यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, y आएगा इधर से 10,000 अपॉन x, और यहां से y कितना आएगा, 20,000 अपॉन z. दो की y की वैल्यूज हैं, दोनों को इक्वल कर दीजिए, 20,000 अपॉन z. सो व्हाट विल बी गेटिंग, x is equals to
यही तो मिलेगा, दैट इज 1/2z। यही तो मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 1/2z, और वी कैन से z इज इक्वल्स टू 2x। z इज इक्वल्स टू 2x। आ गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4 ऑफ 1/3 of 2/5 of a number is 15. What is given to you? Find what will be 40% of that number. So first of all, let the number be, जो मैंने बोला ना, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा है, just take it as x. So 1/4 of means multiply 1/3 of means multiply 2/5 of a number which is x is 15. सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालो, 15 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5/2, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई देम, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 इंटू 30 इज 450। x कितना आया? 450। क्या निकालना है आपको? 40% ऑफ दैट नंबर। 40% ऑफ दैट नंबर विल बी 0 0 0, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 17 18, 180 will be your answer. Okay, moving on to next question. If 15% of 40, if 15% of 40 is greater than 25% of a number by 2, then the number. Again, let the number be x. 15% of 40 is greater, 15% of 40 is greater मतलब डिफरेंस होगा 25% ऑफ अ नंबर विच इज x। कितना ग्रेटर है? 2 ग्रेटर है। सो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, दिस विल बी 6 माइनस 1/4x is equals to 2. 6 minus 2 is equals to 1/4x. This will be 4 is equals to 1/4x. X comes out to be 16, which is your answer. Okay. Moving on to next question. Find the length of a rectangular playground in centimeter whose area is 700 square meter and breadth is 25 meter. फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। बी केयरफुल, आपको मेजरमेंट्स कितने दिए हुए हैं? मीटर स्क्वायर एंड मीटर, ठीक है। और आंसर किससे पूछा है? सेंटीमीटर में। सबसे पहले हमें एरिया दिया हुआ है, कितना? एरिया इज गिवन टू यू एज 700 मीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ इज गिवन टू यू एज 25 मीटर। सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द लेंथ। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ। 700 is equals to length into breadth is 25. Length comes out to be 25 से कैंसिल करेंगे, 25 2 ज़ा 50, 8 ज़ा 200, 28 मीटर आपकी लेंथ आएगी, ठीक है। ये 28 मीटर में है, यू हैव टू चेंज इट इनटू सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज हैविंग 100 सेंटीमीटर, तो 28 मीटर इज हैविंग 2800 सेंटीमीटर। सो योर आंसर विल बी 20। यही गलत मत कराना क्वेश्चन। 2800 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर, ठीक है भाई। मीटर में आपको दिया हुआ था मेजरमेंट, मीटर। सो आपकी जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी? 28 मीटर आएगी, राइट। 28 मीटर विल बी योर लेंथ। आपको निकालना है सेंटीमीटर में। 1 मीटर इज हैविंग 100 सेंटीमीटर, राइट। तो 28 मीटर विल बी हैविंग 2800 सेंटीमीटर, तो दिस विल बी योर आंसर. So I would like to remind all of you that if you have not subscribed Geometry School channel, kindly subscribe it, hit the bell icon so that you can get all the important notifications related to your exam. Also, I would like to tell you that Geometry School is going to provide online classes for RIMC and Sainik School exams. You'll be getting the live classes, you'll be getting the recorded lectures, so that if you're not able to attend the live classes, you can see the recorded lectures.
you will be having a doubt class session. Every query of yours related to exam will be solved. On the other hand, Geometry School is also going to provide offline coaching with hostel facilities. In order to get more information related to the courses, you can visit the website of Geometry School. You can also download the app of Geometry School from your Play Store. So students, again I am telling you, if you have any doubt, please leave the comment below. Your doubts will be answered. Till then, keep practicing, be regular to your practice. The further questions we'll be discussing in next part of the video. Till then, keep enjoying, keep learning. Thanks for watching.